اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کا موقع ملے تو پلیز آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز میں پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے غزہ کے حالات کو لے کر ہی آ رہی ہے۔ جی ہاں، گزشتہ کل دنیا کے سب سے بڑے ٹیررسٹ اور آتنکوادی اسرائیلی فورسز نے گزشتہ کل بھی غزہ پٹی پر زبردست انداز میں بمباری کی، حملے کیا۔ گزشتہ کل تقریباً یوں سمجھے کہ 114 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ اب تک کا جو آنکڑا آ رہا ہے کہ تقریباً 30,000 کے قریب فلسطینی عام شہری سول سٹیزنز شہید ہو چکے ہیں، جن میں 10,000 کے قریب تو بچوں کو مار دیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا ہے، اور 8-9 ہزار کے قریب تو عورتوں کو مارا گیا ہے۔ یعنی اسرائیلی آتنکوادی عام شہریوں کو مار رہے ہیں۔ غزہ پر اسرائیل کے حملوں میں کمی نہیں آ رہی ہے۔ 24 گھنٹوں کے اندر مزید 114 فلسطینی گزشتہ کل شہید کر دیے گئے ہیں۔ ڈان نیوز کے مطابق اسرائیلی فوج نے دیر البلح میں گھر پر بمباری کر کے بچوں سمیت 16 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ 24 گھنٹوں کے دوران 114 فلسطینی شہید اور 250 کے قریب زخمی ہوئے ہیں، اور اب شہیدوں کی تعداد 27-28 ہزار کے قریب پہنچ گئی ہے۔ اسپتالوں کے اطراف بھی حملے کیے جا رہے ہیں، بلکہ ایک اسپتال میں تو اسرائیلی آتنکوادی فوجی باقاعدہ ڈاکٹرز کا اور نرس کا لباس پہن کر ہاسپٹل میں داخل ہوئے اور وہاں پر حملہ کر دیا۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس لیول تک اسرائیل اپنے آتنکواد کا ننگا ناچ کھیل رہا ہے۔ وہیں پر اسرائیل کے وزیر اعظم یعنی دنیا کے سب سے بڑے ٹیررسٹ اور آتنکوادی نیتن یاہو نے کہا ہے کہ غزہ کی پٹی سے ہم اپنی فوج نہیں نکالیں گے۔ نیتن یاہو نے کہا کہ اسرائیل ہزاروں فلسطینی قیدیوں کو رہا نہیں کرے گا تب تک کہ ہم اپنے مقاصد حاصل کیے بغیر یہ جنگ ختم نہیں کریں گے۔ وہیں پر اس نے یہ بھی کہا، اس آتنکوادی نے، کہ حماس کا خاتمہ، یرغمالیوں کی واپسی اور غزہ سے
दोबारा खतरा न होना हमारे मकासद में शामिल है। दूसरी जानिब इस्लामी जिहाद का कहना है कि गजा में मुकम्मल जंग बंदी, इजरायली फोर्सेस की वापसी तक किसी मुजव्वजा डील का हम हिस्सा नहीं बनेंगे। हम लड़ेंगे और आखिर तक लड़ेंगे और इंशाअल्लाह फतह हमारा मुकद्दर होगी इंशाअल्लाह। नाज़रीन, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि पाकिस्तान के XPM साबिक वजीर आजम इमरान खान और बुशरा बीबी यानी उनकी अहलिया को 14 बरस की सजा अदालत ने सुना दी। 1 अरब से ज्यादा का जुर्माना दायर कर दिया। इमरान खान ने कहा कि मेरे साथ धोखा हुआ है। तोशाखाना केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को 14 साल कैद बामशक्कत की सजा सुना दी गई है। रावलपिंडी की अडियाला जेल में एहतसाब अदालत ने समाअत करते हुए इमरान खान को 10 साल के लिए नाअहल भी करार दे दिया। अदालत की जानिब से इमरान खान और बुशरा बीबी पर मजमूई तौर पर 1 अरब 57 करोड़ 40 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया गया है। इमरान खान पर 78 करोड़ 70 लाख रुपए जबकि बुशरा बीबी पर 78 करोड़ 70 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया गया है। तोशाखाना केस में सजा सुनाए जाने के बाद इमरान खान ने जज से कहा कि आपको इतनी जल्दी क्यों है, मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे तो सिर्फ हाजिरी के लिए बुलाया गया था। रावलपिंडी की अडियाला जेल में एहतसाब अदालत ने समाअत करते हुए तोशाखाना केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को 14 साल कैद बामशक्कत की सजा सुना दी है। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेद सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। नाज़रीन, ममलकत सऊदी अरबिया, जी हाँ, मैं खुद इस वक्त यहाँ पर 15 दिन से मौजूद हूँ। यहाँ से खबर आ रही है कि पूरे सऊदी अरब में सर्दी की लहर है। सऊदी महकमे मौसमियात का बताना है कि जिद्दा, मक्कतुल मुकर्रमा, ताइफ और मदीना मुनव्वरा सर्द हवाओं की लपेट में हैं। आज हम खुद जब फजर की नमाज पढ़ने के लिए निकले तो सर्द हवाओं की लहर थी और फिर बाद में बाकायदा हमने फजर की नमाज भी हमने मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाहरी हिस्से में, सहन के हिस्से में हमने अदा की। सर्द हवाओं का झोंका था और उसके बाद सलाम पेश करने के बाद हम तकरीबन 15-20 मिनट रोज़ा मुबारक के सामने खड़े रहे तो काफी सर्द लहर शुरू थी। सऊदी महकमा मौसमियात के मुताबिक तबूक, असीर और अलबाहा में भी सर्द हवाएं चल रही है। जुमे तक सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में मौसम गैर यकीनी रहेगा, जबकि गर्द आलूद तेज हवाओं और बर्फबारी का भी इम्कान है, यानी बर्फ भी गिर सकती है। मौसमी सूरत हाल के बाइस सऊदी महकमा तालीम का कहना है कि गैर यकीनी मौसमी हालात के पेश नजर तालीम का सिलसिला ऑनलाइन होगा, जबकि अलबाहा और असीर रीजन में तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। यानी इतनी जबरदस्त सर्दी यहाँ पर फिलहाल इस वक्त पड़ रही है कि तालीमी इदारे बंद रहेंगे। मैं खुद अभी आपको बताऊं कि 4 दिन से मदीना मुनव्वरा में हम लोग सर्द हवाओं की चपेट में हैं। मेरी बेटी खुद जो है दरख्शा फातिमा और हम सब तकरीबन यूँ समझिए कि सर्दी का शिकार है, लेकिन मदीना मुनव्वरा है, पाकीज़ा शहर है, अमन वाला शहर है, मेरे नबी का शहर है, यहाँ की सारी तकलीफों में भी राहत है। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सुपर लेकर आया सम्राट गोल्ड किट, जो कि मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए है। इनको प्योर जड़ी बूटी से बनाया गया है। इससे आपकी टाइमिंग बढ़ती है, जोश और ख्वाहिश में इजाफा होता है, नसों की कमजोरी दूर होती है। अगर ये आप हमसे लेना चाहते हैं देश या विदेश में कहीं भी, तो हमारे दिए हुए इसके नंबर पर कांटेक्ट करें। नाज़रीन, इस वक्त मलेशिया की बड़ी खबर आ रही है कि सुल्तान इब्राहिम अब मलेशिया के नए बादशाह बन गए हैं। मलेशिया की जुनूबी रियासत जौहर से ताल्लुक रखने वाले सुल्तान इब्राहिम ने मलेशिया के बादशाह की हैसियत से गुज़िश्ता कल हलफ उठा लिया है। सुल्तान इब्राहिम ने बुध के रोज कोलालमपुर के कौमी महल में होने वाली तकरीब में बतौर बादशाह हलफ उठाया। हालिया बरसों में मलेशिया की बादशाहत के असर और रसूख में इजाफा हुआ है, जिसके तहत सियासी अदम इस्तेकाम को रोकने के लिए
सवाबदीदी इख्तियारात का इस्तेमाल किया जाएगा। मलेशिया में हर 5 साल बाद शाही खानदान के सरबराह बादशाह बनते हैं और इस बार अब सुल्तान इब्राहिम मलेशिया के नए बादशाह बन गए हैं। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है ईरान और अमेरिका को लेकर। जी हाँ, ईरान ने अमेरिका को वार्निंग दी और ये कहा कि हम अपनी सरजमीन, अपने मफादात और शहरियों पर हमले का फैसला कुन और जबरदस्त सख्त मुंह तोड़ जवाब देंगे। अमेरिका की तरफ से उर्दुन में अपने फौजियों पर मुहलिक हमले का जवाब देने की धमकियों के बाद, यानी अमेरिका ने पहले धमकी दी, तो इसके बाद अब ईरान ने मुमकिन तौर पर किसी भी हमले का सख्त जवाब देने का ऐलान कर दिया है। ईरानी सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA ने बुध के रोज इत्तला दी है कि ईरान अपनी जमीनों, अपने मफादात और अपने शहरियों पर किसी भी हमले का फैसला कुन और सख्ती से जवाब देगा। एजेंसी ने अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मिशन के हवाले से कहा है कि तेहरान को गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान सालिसों के जरिए अमेरिका से कोई पैगामात मौसूल नहीं हुए हैं। खबर रसा इदारे ने मजीद कहा कि तेहरान अपनी सरजमीन पर किसी भी हमले को रेड लाइन समझता है, जिसका मुनासिब और भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद ने कल अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के सदर के नाम खत में कहा है कि उनका मुल्क खित्ते में किसी फर्द या ग्रोह के इक़दामात का जिम्मेदार नहीं है।